Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following content of topics. So let's discuss. But before that, I want to just announce that to get all our notifications of our upcoming courses, offers, and programs, and also to get some of the free study materials, students as well as aspirants are requested to join our free WhatsApp group that is directly in the link given below. Also, do join to our Telegram channel with the same links given at the description box. So, now let's start with today's analysis. So, the first topic says about AFSPA extended in Nagaland and Arunachal. So, what is AFSPA? It is the Armed Forces Special Power Act. So now it has been said that 12 districts and some parts of 5 other districts across the 2 states will continue to be under the ambit of the law, gives armies some of the sweeping powers. तो ये जो AFSPA है अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है. We can see that meanwhile in Arunachal Pradesh, these provisions will remain applicable in 3 districts, that is Tirap, Changlang, and Longding, and also some of the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police station in Namsai district. So there are a total of 16 districts in Nagaland and some of the 26 in Arunachal Pradesh. ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है. इसी के लिए दिस थिंग्स इज बेसिकली न्यूज. तो अभी जानते हैं थोड़ा बैकग्राउंड अबाउट AFSPA. व्हाट इज दिस AFSPA? See, if I go back to the colonial era, that is the British colonial government, which on 15th August 1942 promulgated the Armed Forces Special Power Ordinance to suppress the Quit India movement. And it was the foundation for 4 ordinances, including one for the Assam disturbed areas, which was invoked around 1947 to deal with the partition-induced internal security challenges. The Armed Forces, be it Assam and Manipur, Special Power Act of 1958 followed the Assam Disturbed Act of 1955 to deal with the uprising in the Naga Hills and adjoining areas. And the act was repealed by the AFSPA for wider application, and a similar act specific to Jammu and Kashmir was also enacted by the time of 1990. So if I say about this Armed Forces Special Powers Bill, which was passed by both the houses of the parliament and it was approved by the time of 1958, it became to known as AFSPA 1958. And this act came into force into the context of increasing violence in the northeastern states decades ago, which the state governments found it difficult to control. So this gives the armed forces some of the special power to maintain public order in disturbed areas. ठीक है, तो therefore today if I see about that what is the definition of disturbed area, तो ये अगर मेरे को पूछ सकता है कोई, तो मैं बताऊंगा कि a disturbed area is one that is declared by notification under section 3 of the AFSPA. That means it can be invoked in places where the use of armed forces in aid of civil power is very necessary. Okay, तो यहाँ पे an area can be disturbed due to differences or disputes between members of different religious, racial, language, or regional groups or caste or communities or whatever this area is comprising of. ठीक है, तो therefore today we can see that ये नागा इंसर्जेंसी के लिए हम लोग ने यहाँ पे शुरू किया था. ओके, देन द सेसेशनिस्ट एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट विच स्प्रेडेड अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, इसके लिए भी हम लोग ने शुरू किया था. तो अभी वी कैन सी दैट अभी नागालैंड में हम लोग ने यहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट में फिर से लगा दिया और फिर 26 districts in Arunachal Pradesh. We could see 26 areas in Arunachal Pradesh. We have directly mandated such number of AFSPA, which is directly said to be a draconian law by various number of people associated with this. Because यहाँ पे कंट्रोवर्सीज रहा है AFSPA के थ्रू से, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे जो मिलिट्री रूल है, मिलिट्री पर्सन है, उन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किया है यहाँ पे. ठीक है, ऑल्सो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ कमिटीज दैट हैव एस्टैब्लिश्ड एंड हैव सेड अबाउट दैट व्हाई AFSPA शुड बी रिपील्ड. ठीक है, so therefore AFSPA should be amended to make it more comprehensive today with some of the elaborative rules with respect to the manner and investigation of alleged human rights violation, that is to reduce the possibility of being abused.
तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत अभी देखना चाहिए कि हाउ द गवर्नमेंट शुड कंसिडर द imposition and lifting of ASPA on a case by case basis and limits its application only to some of the few disturbing areas instead of applying it to the whole state. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने बोला नागालैंड में हम लोग 16 एरियाज के अंदर हम लोग लगा रहे हैं, अरुणाचल में हम लोग 26 एरियाज के अंदर लगा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी कहाँ पर हमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको हटा सकते हैं। जैसे अभी असम में ही हो गया, पहले असम में फुल स्टेट में असम में था, लेकिन अभी असम में एएफएसपी का कोई रोल नहीं है। तो वी विल सी इन दिस फ्यूचर दैट यहाँ से हम लोग कैसे हटा सकते हैं इस एएफएसपी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यूएस ऑन इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी। तो अभी क्या हो रहा है कि लाइक रिसेंटली वी कुड सी दैट अ पेट्रोकेमिकल जो एक कंपनी है इंडिया बेस्ड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इनका नाम है, जो कंपनी है मैं बता देता हूँ, टी बालाजी, ठीक है, टी बालाजी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रॉ क्रूड ऑयल है वो ईरान से परचेज कर रहे थे, ठीक है। एंड दे आर डायरेक्टली रिफाइनिंग इट ओवर हियर एंड दे आर डायरेक्टली सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स जो चाइना वगैरह वगैरह सबसे ये लोग अपना परचेज, अपना जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करते थे। तो यहाँ पे अभी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, सैंक्शंस नहीं लगाए, किसके ऊपर लगाया है, उस कंपनी के ऊपर, दैट इज टी बालाजी। ओके, तो ये कौन लगा है, वी कैन सी अबाउट दैट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग ओएफएसी, ओके। तो उन्होंने लगाया है against a Mumbai-based petrochemical company among several entities accused of selling Iranian petroleum products. So according to this OFSC statement, OFSC मतलब क्या, Office of the Foreign Assets Control, ये बताया गया है कि the sanctioned international network of companies that were involved in the sale of hundreds of millions of dollars worth Iranian petrochemical products to South Asia and also some of the countries of the East Asia. Mainly यहाँ पे चाइना को फोकस कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी ये sanctions mean क्या होता है, it penalizes or it penalties the freeze the company's assets in the US and make it illegal for American citizens to do business with them. And under the sanctions, those involved cannot have access to US financial system or deal with US companies. मतलब वो लोग अभी ना यूएस जा सकते हैं ना वहाँ पे बैंक ओपन कर सकते हैं, और अगर उनका कोई अकाउंट है वहाँ पे तो वो सब फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो वहाँ पे उन लोग का कोई लेना देना है नहीं यूएस के साथ, ठीक है। तो ये पता नहीं मेरे को ये सैंक्शंस कितना भारी पड़ेगा इन कंपनी को के साथ, बिकॉज द कंपनी डज नॉट हैव गॉट एनी रिलेशंस एंड द कंपनीज पीपल डज नॉट मूव टू यूएस, ओके। तो ये बस ईरान के साथ डील करते हैं। तो अभी जैसे हम लोग को पता है अबाउट ईरान, ईरान के साथ हम लोग का वी हैव सीन यूएस बहुत दिनों से लड़ा पड़ा है, बिकॉज ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वो फेल कर दिया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जो शुरू हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बराक ओबामा, ठीक है। तो ये जो डील है जिसको हम लोग फॉर्मली बोलते हैं जेसीपीओए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मली जेसीपीओए, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग negotiations from around 2013 to 2015 between Iran and P5+1 countries. P5 कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और +1 कौन सा है, जर्मनी। एंड अंडर दिस डील ईरान एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली cut its store of centrifuge, enriched uranium, and heavy water, which are all some of the key components for nuclear weapons. ठीक है। तो यहाँ पे इवन टुडे वी कुड सी दैट ईरान also agreed to implement a protocol that would also inspectors of the International Atomic Energy Agency will directly come over here, and they will directly ensure that Iran would not be able to develop nuclear weapon in all its secret elements. तो यहाँ पे जैसे 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 ये फेल होता जाया है, जैसे जैसे यूएस और ईरान के बीच में अभी ये टोटल जो कम्प्रिहेंसिव प्लान है इसको ये होने के तादाद पे है, ऑलरेडी फेल हो ही चुका है बहुत भारी मात्रा में। तो अभी क्या है, सिंस यूएस हैज डायरेक्टली प्रोकन सम ऑफ द सैंक्शंस, तो ईरान इज डायरेक्टली व्हेन दे आर डीलिंग विद सम ऑफ द अदर कंट्रीज, तो वो अदर कंट्री भी काटसा के अंदर आ जाता है, काउंटर इज अमेरिकन एडमिसरीज टू सैंक्शन एक्ट। तो इसीलिए हम लोग ईरान के साथ हम लोग खुद भी डील करना छोड़ दिया है। तो वी हैव गॉट कम्प्लेक्सिटीज बिकॉज यहाँ पे फिर से यूएस सैंक्शंस आ जाएंगे और हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो इसी बेसिकली दिस थिंग्स के लिए ये न्यूज़ पे है कि एक जो पेट्रोकेमिकल है जो टी बालाजी, इट्स एन इंडियन कंपनी, इट्स नॉट एन सैंक्शंस ऑन द इंडियन गवर्नमेंट, इट्स अ सैंक्शन ऑन दिस रेस्पेक्टिव कंपनी ऑल, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ पे है, ईरान देख सकते हो, ये ईरान का मैप है, ओके। यू कैन सी दिस एल्ब्रूज माउंटेन्स, ओके, ये तेहरान है, उन लोग का कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी दिस जाग्रोस माउंटेन्स, इट्स अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स, देख सकते हो, ओके। सो ये बंदर अब्बास है उन लोग का मेन सी पोर्ट, ठीक है। ये बुशैर और एक सी पोर्ट है, ठीक है। देन वी कैन सी दिस इज द पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ये हम लोग का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ से हम लोग का पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो समवेयर अराउंड हियर वी हैव गॉट दिस ग्वाडर पोर्ट, ओके, जो मैंने मार्क किया है, एंड समवेयर अराउंड हियर वी कैन सी
the Chabahar port. Okay, so India is very much interested to take this Chabahar port and develop the Chabahar port, so that from this Chabahar port India can connect to the Central Asian nations. Okay, India can connect from here to this area. तो ऐसे करके कनेक्ट करके हम लोग सेंट्रल एशियन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्टली इन एसोसिएशन विथ ईरान, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। चाइना विथड्रॉल्स प्रपोजल एज आईएई। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में अभी क्या है, एक ग्रुप खोला था विच इज नोन एज ऑकस। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ठीक है, इन्होंने एक ग्रुप खोला था। एंड मेन फोकस क्या था इन दिस ग्रुप? सो द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस एग्रीमेंट इज टू शेयरिंग ऑफ यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया। तो today if you see about that, if I focus on Indo-Pacific, the security grouping AUKUS will directly focus on this adverse interest of the countries of the Indo-Pacific. And we could see that through this Australia becoming a Australia, अगर मैं ये बता दूं तो Australia holds a very crucial position in this area where it is directly located. And transferring the nuclear submarines technology to Australia will be a greater deal, because we know that we need to counter China in this area by any means. Okay, and this step is very much significant because the US has only shared nuclear submarine technology once before, and it started in 1958 with only Great Britain. ठीक है, तो अभी सिंस यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, दे आर नाउ सेट टू जॉइन दिस एलाइड ग्रुप ऑफ ओनली 6 countries which possess a nuclear power submarine। और ये 6 countries कौन कौन सा है? इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएंगे अगर यहाँ पे ये सक्सेस हो पाया तो अभी यहाँ पे जो चाइना है, ये अभी यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया इज नेवर अ पार्ट ऑफ इवेंट एन एनपीटी, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, सो द सोर्सेज से दैट चाइना आर्ग्यूड दैट दिस इनिशिएटिव वाज इन वायलेशन ऑफ द responsibilities under the NPT, and it also criticized the role of the IAF in this regard। तो आप तो ये दोगलापन कर रहे हैं। तो आप सबको बोलते रहते हैं लेकिन अब खुद ही आप ऑस्ट्रेलिया को अपना टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए चाइना यहाँ पे ओपोज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा, देन ऑब्वियसली इट डायरेक्टली पोजेज अ थ्रेट टू चाइना इन दिस रीजन। ठीक है, तो therefore today we can see that therefore these things directly is in news। and इसी के लिए we could see that if China directly grows a majority in this region, or China grows this Australia directly grows in majority in this region, then obviously it can easily with coordination with India can circumvent this whole area of Indian Ocean and can counter China। तो China का growing Australia is directly not in favor of China। ठीक है, तो इसीलिए ये रिजोल्यूशन जो एक्सेप्ट किया गया था ऑकस के थ्रू से, तो ये चाइना अभी रिजेक्ट कर रहा है, चाइना अभी इसको प्रोटेस्ट कर रहा है। तो दिस इज अ स्मॉल न्यूज एसोसिएटेड विद दिस ऑकस ग्रुप। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। गवर्नमेंट फ्लोट्स डिजिटल प्लेटफॉर्मिंग फॉर डाटा शेयरिंग। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट का ऐसा ही हो रहा है कि लाइक गवर्नमेंट इज डायरेक्टली फ्लोटिंग जो प्लेटफॉर्म्स है, जो डाटा शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली हो रहा है गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे बोला गया है अबाउट दिस फेम इंडिया स्कीम। तो दिस फेम इंडिया स्कीम which is basically saying about the faster adoption and manufacturing of electric and hybrid vehicles। तो यहाँ पे this faster adoption of electric and hybrid vehicles, which is also known as this FAME, this is a very important project under the government's program of National Electric Mobility Mission Plan। Okay, and the main thrust of this FAME is to encourage electric vehicles by providing some of the subsidies to them। तो ये जो फेम इंडिया स्कीम है, ठीक है, ये व्हीकल सेगमेंट सब में आता है, और ये फेज 1 स्टार्ट हुआ था 2015 में, और ये एंड हो गया था अराउंड 2019। तो उसके बाद फेज 2 स्टार्ट हो गया था अराउंड अप्रैल 2019, विच विल बी कंप्लीटेड बाय द टाइम ऑफ मार्च 2023। ठीक है, तो अभी ये जो फेम इंडिया स्कीम है, इसका फोकस एरिया 4 है। क्या क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, डिमांड कवर्शन है, ओके, डिमांड क्रिएशन भी करना है हम लोग को, पायलट प्रोजेक्ट्स भी चलाना है हम लोग को, और चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स का भी एक रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज टुडे वी कुड सी अबाउट दिस फेम स्कीम which is basically focused on to make or enable traceability of equipments and inputs with their complete digital footprints। तो अभी जैसे जैसे डिजिटल सिस्टम्स इसमें ज़्यादा यूज होने लगेंगे, ओके, तो यहाँ पे है वो बात एक आया है कि हाउ मच the data sharing will be very much of advent in this region, because though this data will be very much stored by the governmental agencies, तो यहाँ पे इनका सिक्योरेशन कितना है, कितना इनका इनपुट्स जाना है, कितना इनका इक्विपमेंट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे, सब डाटा जो रहते हैं, ये डाटाज हम लोग को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। एंड देयरफॉर इट इज सीइंग दैट यहाँ पे एक क्लेम्स जा रहा है कि हाउ मच this norms are very much, how much this data are very much safe with the governmental agencies। तो ये भी एक
छोटा सा न्यूज़ था अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज स्लोली एंड स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द फेम इंडिया स्कीम एंड गोइंग इन फॉर सम नंबर ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ सच नंबर ऑफ वेल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, कॉटन ग्रोवर्स वरीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिसेंटली ड्यू टू हैवियर फ्लड, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव रेनफॉल इन दिस ईयर हैज नॉट ओनली डैमेज द क्रॉप्स बट आल्सो लेड टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट। तो जितना हैवी रेनफॉल होगा तो मॉइस्चर कंटेंट उतना बढ़ेंगे, एंड इन द सॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच लीव्स ऑफ कॉटन प्लांट हैव बिगन टर्निंग रेड along with thickening of the schemes। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी कॉटन प्लांट्स है ये ठीक होने जा रहा है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा ठीक होता जा रहा है, एंड दिस थिक्स टुडे वी कैन सी दैट इवन सम ऑफ द एरियाज दिस कॉटन प्लांट्स आर टर्निंग रेड, एंड ये एक बार रेड हो जाता है तो ऑब्वियसली दिस कॉटन इज डायरेक्टली गोइंग मच मोर इन अ नॉन फर्टिलाइज्ड वे, तो ये प्रोडक्टिविटी इसका कम हो जाता है। तो ये बेसिकली हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल वी कैन सी द मॉइस्चर कंटेंट इज स्लोली एंड स्लोली very much coming up. So today if I see about that, agriculture department of Karnataka also, okay, has extended various number of helping hands to the farmers with proper guidelines and suggestions to prevent even the crop withering away। तो यहाँ पे since we have seen such number of things even in the flowering stage, okay, तो अभी majority of the crops will not be yield very much in this period। तो इसीलिए अभी जो हम लोग का जो मिनिस्ट्रीज है, this ministries has directly come forward to tackle such number of scenario so that it could never repeat in the near future, क्योंकि इस बार तो yield कम ही होना है बिकॉज हायर नंबर ऑफ फ्लडिंग एक्टिविटीज हुआ है कर्नाटका में। तो रिसेंटली एक तो न्यूज में ही था कि बेंगलुरु में पूरा फ्लड हो गया था, ओके, तो बेंगलुरु सिटी इज पूरी फ्लडेड, तो वहाँ पे पानी जमा हो गया था। तो देख सकते हो तो इस बार बारिश ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे देखा गया है कि लाइक दिस कॉटन प्लांट्स आर डायरेक्टली गोइंग इन फॉर अ गुड नंबर ऑफ सॉइल कंटेंट, ओके, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे लाल पड़ता जा रहा है। तो इफ आई सी अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉटन क्रॉप, तो यहाँ पे आइडियल टेम्परेचर दिया हुआ गया, लॉन्ग वेजिटेशन पीरियड, एम्पल सनशाइन चाहिए उन लोगों को, ड्राई क्लाइमेट चाहिए, एंड मिनिमम 500 मीटर ऑफ रेनफॉल और इरिगेशन। तो आइडियल कंडीशंस क्या है, डीप सॉइल्स होना चाहिए, generally grows in the black soil which is also known as the regur soils, ठीक है, नो वाटर लॉगिंग और क्रॉप डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग रूट्स ग्रोथ इन द फर्स्ट वीक, नेचुरल बर्ड शेडिंग, तो प्लान कंपेंसेट फॉर डैमेज थ्रू इंक्रीज ग्रोथ। तो ये एक पीरियड है। तो यहाँ पे देख सकते हो अबाउट द कंट्री वाइज कॉटन एक्सपोर्ट्स व्हिच यू सी इन दिस पाई चार्ट्स, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Lastly, going with the editorial, letting go of a chance to democratize telecom service। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो अनुष्का जैन जी है, ठीक है, हु इज एन एसोसिएट पॉलिसी काउंसिल एट द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे उनके द्वारा बताया गया है अबाउट द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल। तो अभी जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल हम लोग रिसेंटली लाए गए थे, ठीक है, सो दिस ड्राफ्ट कंसिडरेट बिल कंसिडरेट्स थ्री सेपरेट एक्ट्स व्हिच करंटली गवर्न्स द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो यहाँ पे बोला गया है कि द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1983 एंड द टेलीग्राफ वायरलेस अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1950। तो इन तीन बिलों को कंसोलिडेट किया जाएगा इस बेसिस के थ्रू से। तो टुडे इफ यू गो विद this like present status of the telecom industry in India, today we can see that the telecom industry in India is the second largest in the world, ये हम लोग को पता है। यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में उनका सब्सक्राइबर कितना है, इट इज अराउंड 1.17 बिलियन इन 2022, which takes the overall tele density is around 85.11%। So the industry's exponential growth over the last few years is primarily driven by various number of affordable tariffs, wider availability, mobile number portability, and expanding the 3G and the 4G coverage areas. So the telecom sector, which is the third sector in terms of FDI inflows, contributing around 6.4% of the total FDI inflow. So today, if you go with this, that India is on its way to becoming the second largest smartphone market by 2025, with around 1 billion installed devices, and is expected to have 920 million unique mobile subscribers by around 2025, which will includes even 88 million 5G connectors। तो इसी के लिए हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारा स्कीम्स भी निकाला गया है अबाउट द PLI स्कीम्स अंदर आत्मनिर्भर भारत, जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है, टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स भी लाया गया है, भारत नेट प्रोजेक्ट्स को लाया गया है। देन वी से अबाउट दिस पीएम वानी। पीएम वानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। तो थ्रू ऑल दिस सेक्टर्स टुडे वी कैन सी दैट दिस इज डायरेक्टली रेगुलेटेड, इवन जो भी प्लेटफॉर्म्स है, बी द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये सब जगह हम लोग आज वी आर डायरेक्टली कैटेगराइजिंग इट थ्रू दिस टेलीग्राफ एक्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। तो अभी जो ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है, तो सिंस ये तीनों जगह से मिलके बन के आता है, ठीक है, so we could see that this telecommunication bill will make it easier and will make a single-handedly standalone
framework, legal framework, which will ensure India's socio-economic development in directly the telecom services. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है about the central government even exercise is actually privileged to include license required on online providers to store data locally. तो यहाँ पे बहुत सारा चीज डिस्कस किया गया है. इवन यहाँ पे बोला गया है अबाउट द ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो मैंने अभी भी बोला है. ठीक है. सो वी टॉक्ड अबाउट दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर वेरी मच पॉपुलर. तो ये ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स. तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स आर द ऑडियो एंड वीडियो होस्टिंग एंड स्ट्रीमिंग services such as Netflix, Amazon Prime, Hotstar, which started out as a content hosting platforms but soon bridged out into the production and release of short movies, feature films, documentaries, and web series themselves. So these platforms offer a range of content and uses artificial intelligence to suggest users the content they are likely to view based on the past viewership of the platforms. तो अभी देख सकते हो कि हम लोग अगर कुछ देखते हैं यहाँ पे, तो उसी टाइप का मूवी ही हम लोग का यहाँ पे सजेशन होगा. तो ये क्या यूज कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. तो ये सब जितने भी है हम लोग का, ये सिंगल डिजिट और सिंगल बिल के तहत आएंगे, दैट इज द टेलीकम्युनिकेशन बिल. एंड दिस अटेम्प्ट्स आर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द रिकमेंडेशन एंड लर्निंग पुट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन राइट्स टू प्राइवेसी एंड द जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमिटी ऑन डाटा प्रोटेक्शन. तो ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है. सो स्पेसिफिक पावर फॉर सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज in addition to the internet service having the fundamental right to free speech of citizens, the high economic cost of such shutdowns have been consistently raised as criticism. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को वो देखना पड़ेगा कि how we could be following a good number of regulations through this bill which is the draft Indian telecommunication bill. तो हम लोग इसको कैसे merge कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको improve कर सकते हैं और कैसे हम लोग citizens का privacy यहाँ पे protect कर सकते हैं. ठीक है. और कभी कभी गवर्नमेंट जो सस्पेंशन ऑफ नेट सर्विस कर देते हैं, तो उसका लीगलिटी इलीगलिटीज कितना है, ये सब चीज यहाँ पे डिस्कस किया गया है अबाउट दिस ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल. तो ये अभी तक एक्ट नहीं बना है, ये अभी भी पास नहीं हुआ है. ओके. सो देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज अ बिल. ठीक है. तो ये छोटा सा एक डिस्कशन था अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दैट वी हैव इन आवर कंट्री टुडे. ओके. चलो. तो दिस इज द 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड्स टू अटेम्प्ट. ओके. तो एक मेंस क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you. Do join our channel both in the WhatsApp as well as in the Telegram. Okay. So yeah, lastly, the MCQs of the last day's questions. Okay. So thank you and Jai Hind.